Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at home. Today I will teach you the first chapter of English class 3 and the first chapter's name is The Cactus. What is this? This is a cactus. What is it? A cactus. कैक्टस। अच्छा मुझे बताओ कैक्टस कौन से कलर का होता है? यस, वेरी गुड। कैक्टस इज ऑफ ग्रीन कलर। कैक्टस ग्रीन कलर का होता है। आज हम इस कैक्टस की स्टोरी पढ़ेंगे। ओके? This is the story of a cactus that grows in a beautiful garden located in a small kingdom named Rimdim. ये कौन से किंगडम में ग्रो हो रहा है? रिमडिम। कहाँ पे ग्रो हो रहा है? रिमडिम। रिमडिम इस कैक्टस का नेटिव प्लेस है। ये वहां पे ग्रो हो रहा है। The kingdom is surrounded by plenty of pretty flowers all the sides. But the cactus is lonely figure in the garden. Later on, all the flowers want to become his friends. क्या ये स्टोरी सुननी है? Yes, okay. हम इसे स्टार्ट करते हैं. Okay? In the middle of this beautiful garden stood an ugly cactus. Cactus ज़्यादा beautiful नहीं दिखते हैं, ugly दिखते हैं. Yes? It had 3 stems. How many stems it had? 3 stems. 1, 2 and 3. He had 3 stems. Okay? Which looked like hefty clubs. Hefty clubs. बहुत ही ugly दिखते थे वो, जो उसकी स्टेम थे तो. Thorns, जो उसके thorns थे वो sprouted थे. कहाँ पे sprouted थे? उसके skin पे. ओके? और वो patches जैसे दिखते थे. In odd patches. वो पैचेस जैसे सी यहाँ पे ऐसा पैचेस दिख रहे? ओके। Though to look at the cactus was hard and tough. Hard and tough. T-O-U-G-H. Tough means hard. Okay? But at heart it was soft, gentle and loving. वो दिल से कैसा था? बहुत ही soft, gentle और loving. He often tried talking to the other flowers. I just want to be friends with you. What he said to the other flowers? I just want to be friends with you. The regal rose, the proud rose, the royal rose, the proud daisy, the arrogant sunflower. Arrogant means बहुत ही नकचड़ा, arrogant, and rude chrysanthemum. Okay, chrysanthemum is also a flower which looks like a ball. Chrysanthemum एक flower होता है जो बॉल की जैसे दिखता है. कौन कौन से फ्लावर्स थे वहां पे? रीगल रोज, प्राउड डेजी, एरोगेंट सनफ्लावर
tell me the spellings. Read the spellings with me. R-E-G-A-L. Regal. Regal rose. P-R-O-U-D. Proud. Proud daisy. A-R-R-O-G-A-N-T. Arrogant sunflower. And एक और रूट कौन सा फ्लावर था? रूट क्रिसैंथेमम. क्रिसैंथेमम. C-H-R-Y-S-A-N-T-H-E-M-U-M. Oh my God. कितनी बड़ी स्पेलिंग है क्रिसैंथेमम की. You will get this spelling on page number 11 of your Treasures of English book. Okay? So there were how many flowers? Regal rose, proud daisy, arrogant sunflower, and the root chrysanthemum. They kept cribbing. What they kept? Cribbing. Cribbing means complaining. C-R-I-B-B-I-N-G. वो लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते थे. क्या कंप्लेन करते रहते थे? अबाउट हाउ अगली कैक्टस वॉज. वो हमेशा अगली कैक्टस के बारे में कंप्लेन करते रहते थे कि वो कितना अगली है, कितना बदसूरत है. एंड वॉज स्पॉइलिंग द ब्यूटी ऑफ देयर पार्ट ऑफ द गार्डन. और वो कैक्टस क्या कर रहा था? उस गार्डन के पार्ट की ब्यूटी को खराब कर रहा था. ऐसा कौन कंप्लेन कर रहे थे? ये सारे फ्लावर्स. I don't know why the gardener doesn't approve this cactus, said the rose. रोज ने क्या बोला कि मुझे समझ नहीं आता है जो गार्डनर है वो इस कैक्टस को अप्रूव क्यों नहीं कर देता, उसको उखाड़ के फेंक क्यों नहीं देता. It looks so ugly. ये कितना अगली दिखता है. Then sunflower said, yes, you are right. He is so ugly. वो बहुत ही ज़्यादा अगली, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत दिखता है. Once there was a severe drought. Once there was a severe drought. एक बार वहां उनकी किंगडम में क्या हो गया? एक सीवियर ड्रॉट हो गया. क्या हो गया? सीवियर ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स सूखा. बहुत उनका वहां पे पानी नहीं आया और वहां पे सूखा पड़ गया, ड्रॉट पड़ गया. इन रिमडिम. कहां पर? रिमडिम में. देयर वॉज नो वाटर एनीवेयर. वहां पे कोई भी किसी भी तरह का पानी वहां पे नहीं था. ना पॉन्ड्स में, ना रिवर्स में, ना घरों में, कहीं भी पानी नहीं था. द रिवर्स, द पॉन्ड्स एंड इवन द वेल्स स्टार्टेड ड्राइंग. वो लोग जो रिवर्स थे, पॉन्ड्स थे और जो वेल्स थे वो सूखना स्टार्ट हो गए थे. द पुअर गार्डनर वुड ट्रच फॉर माइल्स इन सर्च ऑफ वाटर. जो उनका गार्डनर था वो क्या करता था? ट्रज करता था. ट्रज मीन्स टू वॉक स्लोली विथ हैवी स्टेप्स. वो बहुत दूर दूर जाके पानी लाने की कोशिश करता था और बहुत ही ज़्यादा वो थक जाता था. फॉर माइल्स इन सर्च ऑफ वाटर एंड रिटर्न विथ अ पॉट और टू. वो या तो एक घड़ा पानी लाता था या 2 घड़ा पानी लाता था. उससे ज़्यादा वो नहीं ला पाता था. विच ही वुड गिव टू हिज फ्लावर्स. वो पानी वो खुद नहीं पीता था, वो फ्लावर्स को देता था. द पीपल ऑफ द किंगडम रैन अवे टू अदर सिटीज एंड टाउन्स. जो वहाँ के दूसरे लोग थे वो कहाँ चले गए? दूसरे सिटीज में या टाउन्स में. द गार्डनर टू वेंट अवे विद अ हेवी हार्ट. जो गार्डनर था वो भी कहाँ चला गया? टाउन्स और सिटी, दूसरी टाउन्स और दूसरी सिटीज में विद अ हेवी हार्ट. The cactus had plenty of water stored. कैक्टस के पास उसकी स्टेम्स में बहुत सारा पानी स्टोर्ड था.
flowers wilting away. Wilting away means wilting, W-I-L-T-I-N-G, wilting away. Wilting away means हीट और पानी की कमी, बहुत ज़्यादा हीट और पानी की कमी के कारण फ्लावर्स ऐसे मुरझा जाते हैं. विल्टिंग अवे मीन्स मुरझाना. इट्स टेंडर हार्ट मेल्टेड. जो कैक्टस का बहुत सॉफ्ट हार्ट था वो मेल्ट हो गया और उसने क्या सोचा? रोज, सनफ्लावर, डेजी, क्रिसैंथेमम, कम एंड ड्रिंक द वाटर स्टोर्ड इन माई स्टेम्स. जो मेरे वाटर में, जो मेरे स्टेम्स में वाटर स्टोर्ड है, आके वो आप ड्रिंक करो. ओके, यहाँ हम इस कहानी को अभी स्टॉप कर रहे हैं. वी आर स्टॉपिंग दिस स्टोरी हियर ओनली. दिस इज योर होमवर्क टू राइट ऑल दीज हार्ड वर्ड्स इन योर रफ नोटबुक. वेयर? इन योर रफ notebook. Okay, and then in the next video we will start with the second part of this story. Everyone is excited what happened the next? So stay tuned with me in the next video. Bye.